Hello and welcome. You're watching the NewsHour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Today was supposed to be a day of celebration on Dussehra. Instead, we woke up to a horrible, wretched image of a man who was beaten, dragged on the ground, his hand chopped off, he was hung upside down, then dragged behind a car, interrogated, bleeding on the floor. Eventually, he was tied to a police barricade and allowed to bleed to his death. All of this happened at the place which is supposed to be the center of the so-called Kisan Andolan, at Singhu border, meters away from the Sanyukt Kisan Morcha stage. This man was 35-year-old Lakhbir Singh, a native of Taran Taran in Punjab. He wasn't the member of any political party. He wasn't the Modi government. He didn't draft the farm laws. He was a poor Dalit labourer who was actually at the Singhu border to participate in the farmers' agitation. But this is what he was subjected to all through last night for 5 hours. ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਰਤਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਰਤਨੀ ਬਾਜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦੱਸ ਗਰਦਨ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਭੇਜਿਆ ਨੌ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਟੰਗੇ ਜਾਂ ਲਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮੇਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਸਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣਾਵੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚ ਕੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਟਕ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਢਤੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਸਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ Lakhbir already had his hand cut off. He had been bleeding for almost 5 hours. But these so-called farmers kept asking him to name the person who had sent him. He was paraded across the dharna site. He kept pleading, not for life, but for death. At one point, Lakhbir pleads that these people kill him, if only to spare him the agony and the pain. But these protesters didn't oblige him. At one point, they chillingly say, let's burn him this Dussehra. ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਰਾਵਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਇੱਥੇ ਫੂਕਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਵਣ ਫੂਕਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਫੂਕਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਰਾਜਨਾ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਰੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 So what is the point of showing you all this? Lakhbir is dead. One man has been arrested for the crime. The FIR has been lodged. But the point of showing you this is to remind you that this anarchy, this grotesque violence is not a recent development. It has festered for months now. It has flourished. It has been enabled to a point where now these protesters are a law unto themselves. From what we saw on the 26th of January when they went on a rampage,
to frequent attacks on the police, to the heckling of journalists, to the attacks on politicians. This had to happen. And the politicians who support this Kisan Andolan knew that it would happen. But they didn't just allow it to happen, they gleefully egged it on. They encouraged these people. They even lionized them as some kind of Bhagat Singh. No, these are people who are hiding their violence in the garb of a farm agitation. The people who gave them the platform to do this today are giving us homilies about how it's a condemnable act, about how they have no relation to it. Listen to them. इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है, उससे संयुक्त किसान मोर्चा का इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो ये है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर। In their camp something happened. With that, SKM has no relation at all. They are not part of SKM, SKM not in that area. But whatever happened, police should inquire it, find out who is responsible, why it happened, and actual truth should be exposed, why it is been happened. But we will oppose that if any conspiracy is done to give bad name to the SKM. So today it's not just us, it's all of you, the viewers, who should ask this question again and again. Who's going to take responsibility for this murder? Who will answer for Lakhbir's family? And who is in charge of this farmers' agitation? Who is accountable for the behavior of the lakhs of people who gather in the name of these farm law protests? These leaders are gleefully tweeting pictures saying lakhs turned up, lakhs turned up. And then when there is an incident like this, you don't take responsibility for the behavior, for the conduct of those lakhs of people? Also for the political parties. When are they going to realize that they cannot reap benefits of the support that this agitation gives them and then simply walk away when this same so-called agitation is spattered with the blood of innocence? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Shazia Almi, national spokesperson of the BJP, joins us. Gunwant Patil, secretary of the All India Kisan Coordination Committee. Vivek Sehla, spokesperson of Samajwadi Party. Preetpal Singh Baliawal, spokesperson of the Punjab Congress. Chaudhry Sawit Malik, national president of the Kisan Union. Chaudhry Avneet Pawar, national president of the Kisan Sena. I want to start by asking you first, Chaudhry Avneet Pawar. Today, the Sayukt Kisan Morcha said that both the accused and the victim are not related to the entire agitation. Then how are they allowed to pitch a tent at the Singhu border? What were they doing at Singhu border for the last 1 year? It's open for all, ना? जहाँ जो भी आएगा उसके लिए हम रोक तो नहीं सकते। ये तो सरकार और पुलिस का काम है कि वहाँ किसी को रोकना चाहता है, हमें जैसे रोक रखता है वैसे वो रोक ले। लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना है? नहीं, हमने कई बार उनसे बात कर, ये आप फैसला करते हैं। सिंघू बॉर्डर में कौन आता है कौन जाता है उसका फैसला आप करते हैं। सरकार ने तो आपको बोला था जाके रामलीला मैदान पे बैठिए या कोंडली में बैठिए। सिंघू में आप सरकार से पूछ के बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से बैठे हैं। तो आप जिसको बैठाएंगे ना वहां पे, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। सर, सरकार को कोई नोटिस लेके नहीं बैठे आप सिंघू पे, अपनी मर्जी से बैठे हैं। तो आप जिसको बैठाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे। बैरिकेड कौन लगा रहा है? रास्ता कौन बंद करवा रहा है? बैरिकेड इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप मार्च करते हुए नहीं तो दिल्ली में घुस जाएंगे। आपका तो कोई पता ही नहीं है ना कि अब आप क्या करने वाले हैं, कौन इंचार्ज है, कौन वहां पे कंट्रोल कर रहा है। वहां तो सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से सब उठ के घर चले जाए? नहीं, अगर आप वहां बैठे हैं तो आप जिम्मेदारी लीजिए। अगर आज ये सिंघू बॉर्डर पे हुआ है जनाब, तो जो जो सिंघू पे गया है ना और जिम्मेदारी लेंगे। हर उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है जो सिंघू पे गया है। ऐसे तो जो लखीमपुर में हुआ है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी सरकार को लेना चाहिए। योगी सरकार उसकी जिम्मेदारी तो ले नहीं रही है। आप अभी सिंघू की बताइए ना, जिम्मेदारी भी तो लीजिएगा। वो बिल्कुल लेंगे।
और वो अरेस्ट करेंगे। आप लखीमपुर की चिंता मत कीजिए, जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के तब आप लखीमपुर की चिंता कीजिए। अभी आप ये बताइए कि सिंघू बॉर्डर पे इन लोगों को बैठने किसने दिया? कोई राजनीति में उतरने के लिए नहीं आए, राजनीतिक संगठन। आप राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहे साहब, लोग बेवकूफ नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। आप वहां राजनीति कर रहे हैं, आप मुजफ्फरपुर से लेकर के मुजफ्फरनगर तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात ये बताइए कि आज अगर लखबीर सिंह इस तरीके से मारा गया तो उसकी फैमिली को कौन जवाब देगा कि उसको किसने मारा? मारा किसने है ये तो बता दीजिए। मारा किसने है? क्राइम की जिम्मेदारी उस बंदे की होगी जिसने आप बताइए ना, और उसको सजा मिलनी चाहिए। जो बैठाते हैं आप बताइए, नहीं पैदा कर रहे हैं, जो बैठाते हैं वो बताएंगे कि किसने मारा है। हाँ हम बताते हैं, बताइए किसने मारा। जहाँ हम बैठे हुए हैं उसके अलावा वहाँ पर कंटेनर अड़े हैं, सीमेंट की दीवार है, वो नुकीले तार लगाए गए हैं जो जानवरों है, कीले लगाई गई है। उसके बाद आप फोर्सेज खड़ी हुई है, उसके बाद 500 मीटर दूर उसको मारा गया। हमारा मतलब है, अरे सरकार हम चला रहे हैं सरकार। आप झूठ बोल रहे हैं, उसको 500 मीटर दूर नहीं, अरे उसको स्टेज के बगल में लटका के मारा गया है सर, उसको स्टेज के ठीक बगल में। और वो वीडियो इतना विभत्स है कि उसको टीवी पर हम दिखा नहीं सकते। एंड यू नो व्हाट इज द क्राइम शेप? सर एक सेकेंड, एक वीडियो उसमें इतना विभत्स है कि वो बेचारा आदमी उसको उल्टा लटकाया स्टेज के बगल में, वहां छोटे छोटे बच्चे वो वीडियो बना के हंस रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप ये कर रहे हो, इस हद तक आपने गिरा दिया है इसको कि छोटे छोटे बच्चे हंस रहे हैं, वो आदमी उल्टा टंगा हुआ है, उसका हाथ कटा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना के हंस रहे हैं। ये है आपका आंदोलन। आप सुनिए, पूरा जवाब दे रहा हूँ। जब हमको बॉर्डर पर रोका गया है, वो नियम अंदर कैसे चले गए दिल्ली की सीमा में? हमारे लिए तो तार लगाए हैं, पत्थर लगाए हैं। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप सीधी बात बताइए कि इनको सिंघू बॉर्डर पे किसने बैठाया? इसको सिंघू बॉर्डर पे किसने बैठाया? किसने इनको सिंघू बॉर्डर पे टेंट लगाने दिया? सरकार ने ये एक साल से ये वहां पे लंगर लगाते हैं, तब तो आप बड़े चौड़े होकर के बोलते हैं कि देखिए सब हमारे साथ है, तब तो आपको बड़ी खुशियां मिलती है कि सब लोग यहाँ पर आकर के हमारा साथ दे रहे हैं। क्या यही लोग 26 जनवरी को आपके साथ नहीं थे? किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हो, वो बहुत दूरी पर है। सर किसान आंदोलन को ना कोई बदनाम करने की जरूरत नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। जब एक आदमी को टॉर्चर करके मारा जाता है तो लोग खुद ही देख लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो नाम और बदनामी की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, आप कौन कितने पानी में है पूरी दुनिया देख रही है। लखीमपुर में जब कुचल के मारा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान यहाँ शहीद होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अवनीत पवार साहब, आप कह रहे हैं ना कि आपको राजनीति नहीं करनी, तो आप लखीमपुर को छोड़ दीजिए, उसमें जो पुलिस को करना है और जो राजनीति को करना है वो कर लेंगे। आप जो अपना एजिटेशन है, जो सिंघू बॉर्डर है, उसकी चिंता कीजिए। शाजिया इल्मी, जब सब कुछ सरकार कर रही है तो ये भी सरकार कर लेती है, आपने रोका क्यों नहीं इन लोगों को आने से? So first of all, I'd like to say that he says, what about Lakhimpur? So they want to take responsibility, right? They want the state government to take responsibility. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो हैं लखीमपुर में जो किसानों को जो जीप में जो लोग बैठे थे, बाकी लोग बैठे थे, उनको जिस तरह से बेरहमी से मार के पीटा गया, वो आप बता दी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब आप ये बताइए लगातार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, ना सिर्फ गणतंत्र दिवस के वक्त पर, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से मुकेश नाम के व्यक्ति को जला के मारा गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसमें बाकायदा उसने कहा है मरते वक्त पर कि मुझे जलाया गया है। जो 2 युवतियों का गैंग रेप हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जिस वक्त खुले आम तौर पर बाकायदा एक दलित वर्कर को
उसकी जिम्मेदारी जिस बर्बरता के साथ कूट कूट के मारा गया, काटा किया और इस तरह से उसको नुमाया करके उसको आप उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब मैं आपसे एक और भी चीज पूछना चाह रही हूँ और ये बहुत मेरा जरूरी सवाल आपसे है। आप ये बताइए, आप अगर आपने कोई चीज का आयोजन किया है और आप उसके आयोजक हैं और आप कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण ये सब काम कर रहे हैं और आप ही के मेहमानों के बीच में इस तरह की मार काट और कत्ल हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? और चन्नी जी का मास्टर कार्ड था ना कि वो दलित हैं और राहुल गांधी तो बाकायदा तस्वीर दिखाते हैं उस दलित माँ बाप की जिसकी बच्ची के साथ रेप हुआ है उनकी मर्जी के बगैर। तो जो दलित लेबरर की जो यहाँ पे मौत हुई है, जो किसान वर्कर है, आप चौधरी साबित मलिक आप इतनी सी बात बता दीजिए कि जब लोग बॉर्डर पे जमा होते हैं तब तो आप बड़ी खुशी खुशी सारे इंटरव्यूज देते हैं, कहते हैं जन सैलाब आ गया। अब इस जन सैलाब की जिम्मेदारी किसकी है बॉस? Having a Dalit for a CM face. बताइए ना। It was also a MasterCard, right? पहले चौधरी साबित मलिक बताएंगे कि जब जन सैलाब आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? Family's house. बताइए। लेकिन जो उसके अंदर ये बीजेपी के लोग अपने लोग घुसाते हैं, जिनको हम पकड़ कौन से बीजेपी के लोग हैं बॉस? कौन से बीजेपी के लोग हैं इनमें? ये पुराना हो गया विक्टिम कार्ड। कौन सा इनमें बीजेपी का आदमी था? कौन से बीजेपी के आदमी ने इनको टेंट वहां पे लगाने दिया? और आप ये बताइए कि इस आदमी को 5 घंटे तक टॉर्चर किया गया। आप में अगर कम से कम और कुछ नहीं तो थोड़ी सी दया तो होती कि देख लेते वो आदमी मर रहा है, उसको हॉस्पिटल तो ले जाते आप। लेकिन हमारे आपके दुख आप अपने पास रखिए। उस आदमी की जिंदगी चली गई, 5 घंटे तक वो आदमी तड़प रहा था आपके स्टेज के बगल में। There is no respect for the rule of law whatsoever. You feel you can just get away with it any time. This is what you feel. बताइए प्रीतपाल जी, आपको भी दुख हो रहा है? देखिए बिल्कुल दुख हुआ। पद्म जहाँ जो आज हुआ है, चाहे वो कितनी देर में आपके दुख से जिंदा होगा ये आदमी? ठीक है, फिर तो दुख वहाँ पे भी मना लेना चाहिए था। आप भी मना लेती जो लखीमपुर में 8 बजे हैं। उसमें मेरे को तो बहुत दुख था। आप अपनी बात बताइए ना, आप अपनी बात बताइए सर। ऐसे अगर उनके मुझे तो 5 जवान। तो लखीमपुर, what Lakhimpur do you keep talking about? मुझे सारी चीजों का The person is in jail and there is an SIT investigation underway. हो जाएंगे। There is an investigation underway, my dear friend. और मैं पूरी क्वेश्चन नहीं, why are you obfuscating? नहीं, why are you running away from the topic? Does it scare you? आपकी सुनी है। Does it embarrass you to know what kind of monsters you have been hiding? बात तो सुन लीजिए। The murderers you are defending. आपको शर्म No, एक second. And let me remind you, Mr. Baliawal, let's not compare apples and oranges. I'll tell you why. Because what has happened today, has been happening for a long time. Everyone talks about 26 January. 26 January, the complete anarchy, that was justified by the likes of you. Whenever anyone questioned कि ये क्या lawlessness है, you said, ओहो, गोदी मीडिया, अन्नदाता को आपने कैसे बोल दिया कि अराजक तत्व हैं? उसके बाद, then you had on the 17th of February, a farm law protester attacked a station house officer at Singhu border, same Singhu border. समायपुर बादली पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल गया, हरप्रीत नाम के एक आदमी ने तलवार से हमला किया। क्यों? क्योंकि वो आदमी एक गाड़ी चुरा के भाग रहा था। उससे पहले जून 12, उसके बाद जून 12 स्पेशल ब्रांच के टीम गई सिंघू बॉर्डर, उनके ऊपर तलवारों से हमला हुआ। This has been happening again and again, sir, and parties like yours have been justifying it. आप लोगों ने इतना एम्बोल्डन किया कि अब इन्हें खुलेआम हत्या करके लाइव स्ट्रीम करने में कोई संकोच नहीं होता। पहले कम से कम थोड़ा डर था, अब इनको पता है कि आप जैसे लोग इनको हीरो बताएंगे। That is the reason why you're culpable. कोई किसी को हीरो नहीं बता रहा। हम वो लोग नहीं जो गोडसे को हीरो मानते हैं। हम जो गलत है उसे आप गोडसे की छोड़िए, आप आज की बताइए सर, आप आज की बताइए। जब 12 जून को, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, on the 12th of June, these people attacked policemen at Singhu border. 2 months later, your party was marching, saying, "Oh, we are marching for farmers." Did you even once say कि सिंघू में जो हो रहा है सही नहीं है? आपने बोला, अरे आपके
राज्य में इन्होंने टेलीफोन टावर्स तोड़ दिए। एक बार आपकी हिम्मत हुई बोलने की कि दिस इज लॉलेसनेस? यू डिडंट हैव द करेज बिकॉज यू थॉट दिस इज गोइंग टू गेट यू वोट्स एंड नाउ पीपल आर डाइंग। वी आर सेइंग, अब सुन लीजिए 2 मिनट दीजिए, मैंने सबकी बात सुनी, अब लेट मी स्पीक। आप ये कह रही हैं, अभी शाजिया जी कह रही थी लॉ ऑफ द लैंड कहां है, सारा कुछ है। इनकी सरकारें क्या कर रही हैं? इस्तीफा दे देना चाहिए, पहले नहीं हुआ। इनकी निकम्मी सरकार के कारण ये कुछ हो रहा है। सेकेंडली, आपने 26 जनवरी की कहानी की बात करी। उस कत्लेआम आप लोग करें और इस्तीफा हम लोग दें। कत्लेआम आप लोग करें और हम लोग इस्तीफा दें। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। क्यों इस्तीफा दें? तो चन्नी जी इस्तीफा देना, नहीं तो चन्नी जी इस्तीफा दें और चन्नी जी इस्तीफा दें। और प्रियंका, आप राहुल गांधी जी से कहिए कि उनके घर आए, लखबीर के घर आए और माफी मांगे, माफी मांगे कि इस कातिलाना लोगों को उन्होंने साथ दिया है। ये कहिए उनसे, 700 शहीद कातिलाना लोगों का साथ दिया है, यूपी के मुख्यमंत्री आए, मर्डरर्स का साथ दिया है, कातिलों का साथ दिया है। नहीं, किसको इस्तीफा देना? एक सेकंड मिस्टर बलियावाल, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, आज सवाल का जवाब दीजिए। आप एक सेकंड आप सवाल का जवाब दीजिए। आप लेफ्ट राइट एंड सेंटर सबका इस्तीफा मांग रहे हैं। आपने जिन लोगों को सपोर्ट किया है पिछले 1 साल से, आज वो ओपनली मर्डर कर रहे हैं। आप किसका इस्तीफा मांगेंगे उसके लिए? उसके लिए कौन इस्तीफा देगा? बिल्कुल, गृह मंत्री जो हरियाणा का है वो इस्तीफा। आपने सपोर्ट किया इन लोगों को, क्यों नहीं देगा? आपने सपोर्ट किया इन लोगों को। जब इनके नाम पे वोट मांग रहे थे, जब इनके नाम पे आप सभाएं कर रहे थे मुजफ्फरनगर में, तब तो किसी और का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे। तब तो बड़े मजे आ रहे थे आपको। तब तो राकेश टिकैत के साथ बड़ी फोटो खिंचवा रहे थे। क्यों? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, अब किसी और की गलती है। जब वोट पड़े तो मैं ले लूं, जब केस हो तो किसी और का हो, जब इस्तीफा मांगो तो किसी और का मांगो। क्यों? तो इसे कंडेम कर रहे हैं। आपके कॉन्डेमनेशन से कोई जिंदा नहीं होने वाला है। आपके कॉन्डेमनेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ना। आदमी तो मर गया 5 घंटे तड़प के, और वो आपके राज्य का है। सर एक सेकंड मिस्टर बलियावाल, टुडे यू हैव टू आंसर, यू हैव टू मेक अ चॉइस। आप बताइए, एक सेकंड, नो, आई हैव वेरी स्पेसिफिक आंसर, आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन टू यू। टुडे यू हैव टू मेक अ चॉइस। आप पंजाब से हैं, ये 35 साल का आदमी भी पंजाब से था, एक दलित था, एक मजदूर था। आज मिस्टर बलियावाल, आप और आपकी कांग्रेस पार्टी इस 35 साल के गरीब दलित मजदूर के साथ खड़ी है जो पंजाब से आता है, या उन लोगों के साथ खड़ी है जो 1 साल से सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं? आप आज जवाब दीजिए, आप किसके साथ खड़े? अब सुन के जाना, बीच में बोलना मत। हम उस लखबीर के साथ भी हैं, उसके साथ गलत हुआ। ऐसी चीज लॉ ऑफ द लैंड जो भी है, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का कोई मतलब नहीं बनता। सेकेंडली, वो किसान आंदोलन है, जो जिम्मेदार आदमी है उसने सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे तो रोज कत्लेआम हो रहा है। यहाँ पे 8 आदमी जो मरे हैं लखीमपुर में, मिश्रा जी पहुंच गए सरेंडर करने, 2 दिन लगे नोटिस चिपकाने के लिए, उनको बेटा फिर आया 5 दिन के बाद। क्या बात कर दी हो आप? नहीं बिताए बेचारे लखबीर की मौत पर 10 सेकंड नहीं बिताए, 10 सेकंड में कूद के लखीमपुर पहुंच गए, क्योंकि वोट तो लखीमपुर से मिलना है ना। इस बेचारे लखबीर से क्या ही आपको वोट मिलेगा? वोट तो लखीमपुर से मिलेगा। गुणवंत पाटिल, ये अभी आंदोलन नहीं रहा है। किसानों का आंदोलन जब भी होता है तो इतने दिन तो चलता नहीं। मैं 40 साल से शरद जोशी के साथ आंदोलन करता हूं। जब भी आंदोलन चलता है तो आंदोलन हो या मोर्चा, किसी भी आंदोलन या मोर्चे की जिम्मेदारी उस लीडर पे होती है। कोई दूसरा घुस जाए उसमें, कोई बस्ती करे, तो उसके लिए लीडर जिम्मेदार रहता है। इसलिए आंदोलन का एक पीरियड रहता है, उसी पीरियड में ही वो आंदोलन होना चाहिए, नहीं तो वो राजनीति में कन्वर्ट होता है। आज के डेट में ये आंदोलन नहीं रहा है, ये राजनीति हो रही है। और मुझे डर है कि राजनीति से बाद में ये धर्मवाद, जातिवाद पे जाएगा। ये बहुत ही डेंजरस आंदोलन होने जा रहा है। जब लखीमपुर में हुआ तो सभी कांग्रेस के लोग, हर एक लोग चाहते थे कि वहां जाके और राजनीति करें। आज क्यों नहीं कर रहे हैं?
एक दलित किसान मर गया है तो वो क्यों नहीं जा रहे, उसके घर क्यों नहीं जा रहे, 45-50 लाख लेके घर में क्यों नहीं जा रहे? बताइए बलियावाल साहब, आप ही के खुद के स्टेट का इतनी देर क्यों लग रही है? चन्नी साहब क्यों नहीं पहुंचे उसके घर तरन तारन? अरे मेरी बात सुनिए, जो एक इंसिडेंट हुआ है पदमजा, दो चीजें हैं, हर एक चीज को एक चीज से नहीं जोड़ा जा सकता। इंसिडेंट नहीं है सर, ये हत्या है। एक आदमी के टॉर्चर को इंसिडेंट मत बोल दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसके सर पे पत्थर मारा है, उसका हाथ पैर काट के उसको टॉर्चर किया है। इट इज नॉट एन इंसिडेंट, इट्स अ मर्डर। Please call it that. In fact, it is worse. It's an execution. So please don't make it seem जैसे दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। ये इंसिडेंट नहीं है। मर्डर हुआ है उसका कारण क्या है? मर्डर जो हुआ है एक्चुअली रिजिलिस ग्रंथ था हमारा, जो वो लेकर वो आदमी भागा जिसकी शंका उन्हें हुई, उसके बीच में ये चीज हो गई। मर्डर कर देंगे, तो मर्डर कर देंगे। ये आप क्या बोल रहे हो? तो मर्डर कर देंगे क्या? एक तो पहली बात, आपको कैसे पता कि बेअदबी हुई है? आपको कैसे पता कि बेअदबी हुई है? तो पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है ये बात। पुलिस नहीं कह रही है, पुलिस नहीं कह रही है, बात कर रही हो पदम, पुलिस नहीं कह रही। शाजिया अलवी, पहली बात तो ये पुलिस ये नहीं कह रही है। इनफैक्ट सर, इफ यू पे अटेंशन एंड आई विल प्ले आउट फॉर यू, देयर इज अगेन एंड अगेन। देखिए पद्मजा जी, इनके शाजिया अलवी, ये लोग इतने शातिर हो गए हैं, ये लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, ये लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। इतने शातिर इनका स्वभाव हो गया है कि ये इतने हीनस, एक बिल्कुल एक जघन्य अपराध जो हुआ है, मतलब दिल दहलाने वाली वो तस्वीरें हैं, उसको भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं। आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है आप जैसे लोगों के साथ शेयर करने पर। आपको अपने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हमने इस तरह के कातिल लोगों को अपने आंदोलन में जगह दी, बल्कि आप जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब। ये इतनी ज्यादा तकलीफदेह तस्वीरें हैं, ये तालिबानी बर्बरता को भी पीछे छोड़ देती हैं, तालिबानी बर्बरता को। और बार बार आप लखीमपुर की बात कर रहे हैं, जो लोग उस गाड़ी में बैठे थे आपने उनको निकलवा कर भी इतनी बुरी तरह से मरवाया है। वो क्या कानून का राज्य है? एक सेकंड, वो क्या न्याय का राज्य है? आप बाकी सब कुछ छोड़िए, आप बाकी सब कुछ छोड़िए। बलियावाल जी, आप सिर्फ इतना बताइए ना, आपने हमें 1 महीने पहले बोला दैट कांग्रेस इज द मोस्ट दलित फ्रेंडली पार्टी, क्योंकि पंजाब में हमने पहला दलित सीएम दिया। आज एक दलित आदमी को जो कि पंजाब से है, उसको पूरी सबके सामने 24 घंटे होने वाले हैं टॉर्चर करके मार दिया गया। उसकी फैमिली वहीं तरन तारन में रहती है। सर क्यों नहीं गए आप लोग, क्यों नहीं गए? देखिए अभी उसकी बॉडी यहाँ पे है, कल बॉडी जाएगी वहाँ पे, जो राइट्स होंगे, जो रिचुअल्स होंगे, कितने लोग हॉस्पिटल में भी गए, पार्टी के लोग जाएंगे। आप में से कितने लोग हॉस्पिटल में भी गए? दोस्त, आप तो हर चीज में अपना पूरा मोर्चा लेकर के वीडियो बनाते हुए पहुंचते हैं। कितने लोग गए मॉर्चुरी में पता करने? बताइए। इंसिडेंट पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, कहां पे हुआ है? अभी लॉ ऑफ द लैंड, उसकी फैमिली तो पंजाब में की पुलिस है। आप मानते हैं कि उसका मर्डर हुआ है कि नहीं मानते हैं? आप मानते हैं मर्डर हुआ है कि नहीं? तो आप उसकी फैमिली पे क्यों नहीं गए? उसकी दलित फैमिली से मिलने क्यों नहीं गए? एक बात कह रहा हूं, उसका, अरे मेरी बात तो सुन लोगी बहना, सुनोगी तभी बोलूंगा ना। अभी उसका जो इंसिडेंस हुआ है, जो मर्डर हुआ है, हम उसे कंडेम कर रहे हैं। कल उसकी बॉडी आएगी, उसका जो यहाँ की लॉ ऑफ द लैंड है वो तो क्लियर करे क्या हुआ है। अच्छा। आप वो अभी तो यहाँ की पुलिस ही आपको क्लियर नहीं हुआ कि मर्डर हुआ कि नहीं? अच्छा, अभी थोड़ा डाउट रह गया है कि पता नहीं शायद मर्डर था, शायद नहीं था। अब पता नहीं हाथ कटने से मर गए या पता नहीं खुद ही से हार्ट अटैक से मर गए। अभी आपको डाउट है? पदम जा, मैं तो इस चीज को कंडेम कर रहा हूँ। आपकी कॉन्डेमनेशन से कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपने सालों से ये कह रहा है कि आपने ठीक हुआ है। बताइए, गुणवंत पाटिल, गुणवंत पाटिल नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, वो कह रहा है आप नरेंद्र मोदी से लड़िए सर, बट आप नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए ऐसे लोगों को मत एनकरेज कीजिए जो कि एक दिन आप ही पे पलट जाएंगे। यू डू नॉट रियलाइज दिस सर, यू आर ऑल
also in government in Punjab. And this is a tiger that you are riding. The moment you stop riding it, the moment you will try and control these elements in your own state, they will come back to bite you. Gudman Patil. अभी देखिए, ये किसान आंदोलन का हाल बना के आप जो लड़ रहे हैं, आपको अगर मोदी जी के ऊपर कोई विरोध करना है, मोदी जी का विरोध है, डायरेक्ट जाके कीजिए ना। किसान आंदोलन का बहाना करके जिस तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उसका तो हम निषेध ही करते हैं, क्योंकि ये सब गलत है। इतने दिन किसान आंदोलन नहीं चला सकते। हम 15 दिन अगर आंदोलन चलाए तो इतना मुश्किल रहता है। धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं। यहाँ तो लोग बढ़ रहे हैं। पंजाब सरकार ने चलाना, जिनकी फसलें बिक जाएंगी, फसलें बिक जाएंगी, वो आपसे पूछे, वो आपसे पूछे, आपके पास आए पूछने, ये पंजाब सरकार ने आपकी सरकार थी, कैप्टन जी की सरकार थी, आपको बॉर्डर पे हकल दिया गया, फिर भी आप आंदोलन से पहले सोचो, समझो और फिर बात करो। जिनकी नस्लें और फसलों का मसला है ना, जिनकी नस्लें और फसलों का मसला है, वो लड़ रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, लड़ रहा हूं। क्यों? लखबीर की कोई नस्ल और फसल नहीं थी। लखबीर की जिंदगी नहीं है, क्योंकि लखबीर का वोट आपके लिए जरूरी नहीं है। आप ही के पंजाब से है, आप ही के पंजाब से है बलियावाल साहब, और आपको देखेंगे लोग और ये याद रखेंगे। ये जो आप मास्टर स्ट्रोक की बात करते हो ना कि हमने सीएम बना दिया दलित, एक आदमी को पीट के मार दिया, आपके मुंह से उफ तक नहीं निकली सर, क्योंकि आप जिसके साथ खड़े हैं ना, लोग देखेंगे और लोग फैसला करेंगे। पंजाब में मेरा जो सीएम है वो दलित नहीं है, वो पंजाब का सीएम है। काइंडली उसे बार बार दलित बोल के नीचे आपने बोला है, आपके खुद के लीडर्स ने बोला है सर, आप बोल रही है, आपके खुद के लीडर्स ने बोला है, आपके खुद के लीडर्स ने बोला है। जिस दिन उनकी स्वेरिंग इन थी, उस दिन बकायदा कांग्रेस पार्टी ने बोला दैट हम सबसे ज्यादा दलित के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा सीएम पहला दलित सीएम है। तो आप प्लीज विक्टिम कार्ड ना खेलना छोड़ दीजिए, आप विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। विवेक सहलास, बिल्कुल उनको सीएम ही बोलना चाहिए, पर आपने उनको सिर्फ दलित सीएम को रिड्यूस करके रखा, आपने उनको बोला, आपने उनको ऐसे बोला, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विवेक सहलास, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दैट ऑन द 26th of January, on the 26th of January, 525 policemen and women were injured in violence that was carried out by these so-called protesters. After that, on the 27th of January, your party chief Akhilesh Yadav said, and I quote, भाजपा सरकार ने जिस प्रकार किसानों को निरंतर उपेक्षित, अपमानित और आरोपित किया है, उसने किसानों के रोष को आक्रोश में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब जो हालात बने हैं उसके लिए भाजपा ही कसूरवार है। भाजपा अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए कृषि कानून रद्द करे। अगर 27 जनवरी को हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी हिम्मत होती दैट दे कॉल अ स्पेड एंड से वी विल नॉट सपोर्ट वायलेंस, आज ये दिन नहीं आता। विवेक सहलास, डू यू एग्री? Ma'am, first of all, this incident, what has happened at the border of Haryana and Delhi, this is horrific, brutal, cruel, barbaric. There are no words to describe this. आपने जो अभी अखिलेश जी की ट्वीट की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की जो मांगे उसको तत्काल माने और इसका अंत करें। दिस शुड एंड। तो वो मार अभी शाजिया जी बोल रही थी कि कोई पैनलिस्ट झूठ पे जब तक किसान कानून वापस नहीं होगा तब तो लटका दीजिए, सबको लटका दीजिए। सिंगू बॉर्डर क्यों? दिल्ली के अंदर आइए, लखनऊ के अंदर आइए, लोगों को पकड़ के मारना, लटकाना, उनके हाथ पैर काटना शुरू कर दीजिए ना। आप तो यहाँ बैठ करके उस तरीके का लॉजिक दे रहे हैं जो कि राकेश टिकैत ने लिया था कि भाई वहां तो एक्शन था तो हमने रिएक्शन कर दिया। खत्म करिए, मैं बोलता हूं ना। आपने, आपका लॉजिक, एक सेकंड राकेश टिकैत को सुनते हैं, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है मैम।
ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का। कौन सा पद्मजा काम जी, भारतीय जनता पार्टी का है? काटना, लटकाना, कुचलना। पर सिंगू बॉर्डर में क्या किया भाजपा ने? सिंगू बॉर्डर में कौन से भाजपा के कार्यकर्ता? आपके कहने से आप सिंगू बॉर्डर में हो जाएगा, भाजपा के लोग थे। और आप जो कुचल रहे हैं, आप सालों साल से जो कुचल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, आई कंडेम दैट। योर कॉन्डेमनेशन छत्तीसगढ़ में, आज छत्तीसगढ़ में वहां के पुलिस प्रशासन की आंखों के आगे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खत्म करती है इस आंदोलन को? बोलिए ना भारतीय जनता पार्टी से, पूछिए प्रधानमंत्री से, वो टेलीफोन नंबर कहाँ है? पूछिए ना पद्मजा जी, आज मैं आपसे सवाल करता हूँ, पूछिए प्रधानमंत्री से। शाजिया जी, before you respond, let me ask a very simple question. Vivek Salas, everyone has been since morning giving these homilies about how barbaric it is, especially political parties. So I will ask you a very specific question. विवेक सलास जी, आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए, आप मानते हैं कि जो हुआ वो जघन्य था, इनह्यूमन था, बारबैरिक था? आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना इनह्यूमन है? आप मानते हैं ना इनह्यूमन है? आप मानते हैं ना इनह्यूमन है? हिम्मत है पद्मजा जी, आप मानते हैं ना इनह्यूमन है? जोशी, हिम्मत है, सब में हिम्मत है सर। आप मेरी हिम्मत की चिंता मत कीजिए, एंड आई डोंट यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट यू प्लीज टेल मी, जस्ट अ सेकंड, आपकी हिम्मत है सर? ये कोई दंगल नहीं हो रहा है यहाँ पे, किसी की हिम्मत ऑन टेस्ट नहीं, ठीक है? वी आर इन अ टीवी स्टूडियो, लेट्स बी रियल। Answer me a simple question. Answer me a simple question. Mr. Salas, answer me a simple question. Or do you not want to hear the question because it will be a very difficult question to answer? I just want a assurance from you. आपने बोला कि जो हुआ सिंगू बॉर्डर में वो बेहद कंडेमनेबल, जघन्य, इनह्यूमन था, करेक्ट था ना? बिल्कुल है। तो आज आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह एश्योरेंस दे दीजिए कि समाजवादी पार्टी आज से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कभी किसी मंच पर नहीं जाएगी, क्योंकि उनके मंच से जो हुआ है, उनके प्लेटफॉर्म से जो हुआ है, वो जघन्य, इनह्यूमन और कंडेमनेबल है। बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या करेगी वो आपसे बोलिए ना। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। अरे कंडेमनेशन पे क्यों रुक रहे हैं? बोलिए ना। हम हत्यारों के साथ स्टेज साझा नहीं करेंगे, पीरियड। मैम, हत्यारों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए ना, आप बताइए, आप हत्यारों के साथ स्टेज साझा करेंगे, हाँ या ना? कर लीजिए ना पद्मजा जी, आप हत्यारों के साथ स्टेज साझा करेंगे, हाँ या ना? हर चीज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपका ऑब्सेशन है वो। विवेक जी, आपका ऑब्सेशन है वो, आप अपने बारे में बताइए ना। विवेक जी, जो पिछले 10 मिनट से हिम्मत की बात कर रहे हैं, उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक मरते आदमी के बारे में इतना बोल दे कि उसको मारने वाले के साथ हम स्टेज नहीं शेयर करेंगे। इतनी जरूरी है आपके लिए उन लोगों के वोट्स और उन लोगों की राजनीति कि आप एक मरते आदमी के हत्यारों के साथ स्टेज साझा करने को भी मना नहीं कर रहे। तो हिम्मत की तो बात आप मत ही कीजिए। हत्या है, हत्या ऑब्वियसली बात है, हत्या तो है हत्या, उसमें कौन सा आपने आइंस्टाइन वाली बात कह दी? राजनीति हत्या तो हत्या है, पर आप उन हत्यारों के साथ स्टेज साझा करेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? हम किसानों के साथ खड़े हैं, हत्यारों के साथ नहीं। जिसने इस आदमी के हाथ पैर काटे ये किसान है, हत्यारों के साथ नहीं खड़े। जिसने इस आदमी के हाथ पैर काटे वो किसान है। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जिसने इस आदमी के हाथ पैर काटे वो किसान है। खड़ी रही। जिसने इस आदमी के हाथ पैर काटे वो किसान है। के साथ खड़ी रही, उन्नाव के हत्यारों के साथ खड़ी रही। जिसने इस आदमी के हाथ पैर काटे, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल, जिसने इस आदमी के हाथ पैर काटे, क्या वो किसान है? सिख दंगों में क्या हुआ? सिख दंगों में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो थे हत्यारे बन गए। जिस आदमी ने क्या कुछ कहना ना, छोड़िए, आप सब छोड़िए। आज बस फैसला हो जाए, आज ये फैसला हो जाए विवेक जी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से क्या कहना है आपको? कौन किसान है और कौन हत्यारा है, एंड वेयर डज द लाइन ब्लर? आर वी गोइंग टू कीप एक्सक्यूजिंग पीपल हु आर मर्डरिंग, हैरेसिंग, हेकलिंग, अटैकिंग, स्टैबिंग
destroying public property just because people like you will come on TV and say, पर ये तो किसान है, ये तो अन्नदाता है, no farmer, no food, hashtag. No. उसके करके आप कुछ भी करेंगे? कुछ भी करेंगे? नहीं. मार देंगे लोगों को. इस तरह के लोगों का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो आप संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज को बॉयकॉट करेंगे, हाँ या ना? नहीं किया जा सकता। आप संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज को बॉयकॉट करेंगे, हाँ या ना? अरे पहले इनको शांत तो कराइए। बताइए। What you have been saying? You are unable to control anything. You are unable to control the damn country. What are you talking? You are unable to control the country. You are mistruth. You are unable to control the farmers. You are unable to control the law and order. You are unable to control the border. What are you doing? You are unable to control the economy. You are unable to control the fuel prices. What are you doing? It is more convenient for you. It is more convenient for you. It is more convenient for you, sir. People like you and people like Mr. Baliawa. To my mind, it is your acts which are going to now be held up to public scrutiny. Don't forget. People will watch and people will judge you and your actions. आप लोग आज टीवी पर बैठ करके कॉन्डेमनेशन करते हैं. Mark my words. 15 दिन नहीं बीतेंगे, आप इन्हीं लोगों के साथ खड़े होके वोट मांगेंगे यूपी में. 15 दिन नहीं बीतेंगे. And then the family of Lakhbir will watch you, sir, and they will judge you. Word also. They will judge you. My word too, Padmaja ji. People will judge you, sir. Whatever happens. And karma will judge you. गुणवंत पाटिल, आप फार्मर, आप जिनको फार्मर कह रहे हैं ना, आप जिनको फार्मर कह रहे हैं, एक फार्मर यहाँ पैनल पे भी है. गुणवंत पाटिल भी फार्मर है, पर वो राजनीतिक फार्मर नहीं है. तो उनकी बात आप नहीं सुनेंगे. गुणवंत पाटिल. मैंने आपसे कहा पहली बार हत्यारे के साथ हम नहीं है, लेकिन किसानों के साथ हमें और रहेंगे. 3 कानून आए हैं और लिबरलाइजेशन की तरफ एक पहली पहल है जिसमें पंजाब और हरियाणा का भी फायदा होने वाला है. लेकिन पता नहीं क्यों राजनीति चल रही है. आज के जो सोयाबीन के भाव बढ़ गए, अगर ये कानून रहते, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट की स्थगिति नहीं रहती तो सोयाबीन के भाव चढ़े हुए रहते. जो लॉक लगाया गया है, स्टॉक लिमिट को लॉक लगाया गया है, क्योंकि कानून अभी जिंदा नहीं है, क्योंकि उसको रोक दिया गया है. इसीलिए ये पहली बार अच्छे कानून आने के बाद भी आप अगर उसको विरोध कर रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं. चौधरी साबित मलिक आप खुद को किसान नेता कहते हैं, पर जब गुणवंत पाटिल सोयाबीन की बात करने लगते हैं तो आप लखीमपुर क्यों चले जाते हैं? फार्म लॉस की बात कीजिए ना, सोयाबीन की बात कीजिए. पर आपको सोयाबीन में तो ना तब इंटरेस्ट था ना अब इंटरेस्ट है. आपको तो वोट्स में इंटरेस्ट है, आपको लखीमपुर में इंटरेस्ट है. आपसे कोई आदमी सोयाबीन के दामों की बात कर रहा है, आप फटाफट से आशीष मिश्रा पे पहुंच जाते हैं. बट शाजी अलमी, आई वांट टू आस्क यू, you know, it is all very well people who have enabled, people who have condoned, people who have taken support, they will be called out and people will judge them. But the people of this country will judge you. Because you have allowed this to fester for 1 year. Now a common citizen doesn't know. आज हम सिंगू बॉर्डर नहीं जा सकते because we don't know that we won't be heckled there. सिंगू बॉर्डर पे जो गांव वाले हैं वो अपनी फैक्ट्री नहीं जा सकते because they don't know कि सड़क खुली है या बंद है. उन्होंने आपको सरकार में डाला है. आप कब खत्म करेंगे ये सब? जब भी इनको रोका जाता है या टोका जाता है, ये क्या कहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं तो सरकार हम ये रोते पीटते हर जगह जाते हैं और विदेशियों से कहते हैं इनके लिए बोले. कहा गया है, बार बार इनसे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड कमेटी भी, आप बोलने दीजिए भाई साहब, आपका असलियत दुनिया देख रही है, पर्दाफाश हो गया है. क्या आपकी असलियत है? कानून वापस लीजिए ना मैडम. क्यों उनमें से 2 कानून जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस में है. मिस्टर सैलास, whether the laws are to be taken back or not to be taken back has absolutely no connection with this act of violence, because this is a crime. I mean, I don't even have the words for it. How can anyone not fly into a rage seeing what this man was subjected to? And how can you not bring yourself to at the very least say that those who allowed these people to proliferate and sit there for a year, we will boycott them? Think about that, please, if nothing else, for the sake of basic humanity. Thank you very much.